अपनी साथी किशन तिवारी आप જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી જે હાલ દિલ્હીથી સામે આવી રહ્યા છે વાત કરીએ આપણે તો સીપી રાધાકૃષ્ણન એક મોટા માર્જિનથી ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતી ગયા છે તેમણે બી સુદર્શન રેડ્ડીને હરાવીને જીત મેળવી છે ઉપરાષ્ટ્રપતિના ચૂંટણીમાં કુલ 781 મતોમાંથી 767 મત પડ્યા હતા इंडियाના ઉમેદવાર અને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણને 452 પ્રથમ પસંદગીના મત મળ્યા છે તેઓ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે વિપક્ષના ઉપરાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બી સુદર્શન રેડ્ડીને 300 પ્રથમ પસંદગીના મત મળ્યા હતા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે મંગળવારે ચૂંટણી યોજાઈ હતી જણાવી દઈએ કે એનડીએના ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન ચૂંટણી જીતી ગયા છે તેમણે 452 મત મળ્યા છે વિપક્ષના ઉમેદવાર બી સુદર્શન રેડ્ડીને 300 મત મળ્યા છે રાજ્યસભાના મહાસચિવ પીસી મોદીએ પરિણામોની જાહેરાત કરી હતી પીએમ મોદી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ કોંગ્રેસ સંસદીય દળના વડા સોનિયા ગાંધી પાર્ટી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત 760 થી વધુ સાંસદોએ મતદાન પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead to. સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ નેપાળની તો નેપાળમાં હિંસક વિરોધી પ્રદર્શનોને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે વિરોધીઓએ સંસદ પીએમ રાષ્ટ્રપતિના ખાનગી નિવાસ સ્થાનમાં આગ લગાવી દીધી અને સુરક્ષા દળો પાસેથી હથિયારો છીનવી લીધા છે તેઓએ બે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાનોના ઘરો પર પણ હુમલો કર્યો હતો જણાવી દઈએ કે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઝાલનાથ ખનાલના ઘરને આગ ચાંપી દેવામાં આવી છે આમાં તેમની પત્ની રાજલક્ષ્મી ચિત્રકર ગંભીર રીતે દાઝી ગઈ હતી તેમણે તાત્કાલિક કીર્તિપુર બર્ન હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેર બહાદુર દેવબાને તેમના ઘરમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો જ્યારે નાણામંત્રી વિષ્ણુ પૌડેલને કાઠમાંડુમાં તેમના ઘર નજીક પીછો કરીને મારી નાખવામાં આવ્યા છે અને ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વિડીયોમાં એક પ્રદર્શનકારી તેમની છાતી પર લાત મારતો જોવા મળી રહ્યો છે દેશમાં ચાલી રહેલી હિંસક ઘટનાઓ વચ્ચે વડાપ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીએ તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે સેનાના હેલિકોપ્ટર દ્વારા તેમને સલામત સ્થળે પહોંચાડવામાં આવ્યો છે જણાવી દઈએ કે રાજધાની કાઠમાંડુ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અથડામણ અને આગચાંપીમાં અત્યાર સુધી 22 લોકો માર્યા ગયા છે જ્યારે 400 થી વધુ લોકો ઘાયલ છે મંગળવારે સાંજે કાઠમાંડુમાં પ્રદર્શનકારીઓએ સીઆઈએની કાર્યાલયમાં આગ ચાંપી હતી સીઆઈએનું કામ સરકારી સંસ્થાઓ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર લાંચ અને સત્તાના દુરુપયોગની તપાસ કરવાનું છે આગ ચાંપીને કારણે ઇમારતને ગંભીર નુકસાન થયું છે જણાવી દઈએ કે પોલીસ અને અગ્નિશામકોએ મોડી રાત સુધી આગ ઓલવવા અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો અલીગઢમાં સાધ્વી પ્રાચીનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે જણાવી દઈએ કે નેપાળમાં થયેલા હોબાળા અંગે સાધ્વી પ્રાચીએ કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયાના હોબાળાની આડમાં ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યું છે કેટલીક રાષ્ટ્રીય દુષ્ટ શક્તિઓ ષડયંત્રમાં રોકાયેલી છે અશોક પ્રતીક સ્તંભને હટાવવા અંગે સાધ્વીએ કહ્યું કે અશોક પ્રતીકની જરૂર છે દરગાહની નહીં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે દરગાહ માટે રાષ્ટ્રીય પ્રતીક સ્તંભને હટાવવામાં આવી રહ્યું છે અને સાધ્વીએ વધુમાં કહ્યું કે ખિસ્સામાં રાખેલા અશોક પ્રતીક પણ કાઢી નાખવું જોઈએ लेकर इस वक्त नेपाल में जंग छिड़ी हुई है और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उधर इस पूरे मूवमेंट में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है बातचीत करने के लिए मेरे साथ साध्वी प्राची हैं जानेंगे उनसे दीदी सोशल मीडिया को लेकर नेपाल के हालात बेहद खराब हैं युवाओं की जानें जा रही हैं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं क्या कहेंगे आप देखिए नेपाल के जो इस समय हालात है मुझे तो कुछ लग रहा है कि जो लोग इस तरह का इतना बड़ा तांडव कर रहे हैं इतना बड़ा मूवमेंट एक बड़ा आंदोलन आखिर काहे के लिए सोशल मीडिया के लिए अरे भाई सोशल मीडिया अगर वहाँ के
मंत्रिमंडल ने, किसी अकेले सीएम ने या मंत्री ने अकेले ने नहीं किया, सबने किया, विचार करके किया होगा, ऐसा नहीं है। आंदोलन जो चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। बहन जी, जम्मू कश्मीर से एक तस्वीर सामने आई है तिरंगे को लेकर, आपने देखी होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो दरगाह पर एक बहुत बड़ा मामला अशोक चक्र को हटाने का आया है। अशोक चक्र तो भाई मेरा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र को क्यों हटाएगा? दरगाह का देश में काम क्या है? हिंदुस्तान के अंदर दरगाह का क्या काम है? अशोक चक्र राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चक्र जेब में क्यों पड़ा है? जब अशोक चक्र हराम बता रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह को हराम बता रहे हैं, तो जेब में जो पड़ा है अशोक चक्र उसको भी निकाल के फेंकिए। दरगाह को हटाइए, दरगाह की जरूरत नहीं, अशोक चक्र की जरूरत। तो आपने सुना, सीधे तौर पर कहना है कि मेरठ में जो अब्दुल्ला रेजिडेंसी बन रही है उस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। સમાચારોમાં હવે આ તરફ આગળ આપણે વાત કરીએ રાજસ્થાનના જયપુરની, તો રાજસ્થાન ધર્મ પરિવર્તન વિરોધી બિલ 2025 મંગળવારે વિધાનસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસે બિલ પરની ચર્ચામાં ભાગ ન લીધો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો આ સમય દરમિયાન હંગામો કરતા રહ્યા. ધર્મ પરિવર્તન વિરોધી બિલમાં કડક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. જણાવી દઈએ કે સામૂહિક ધર્મ પરિવર્તન કરાવતી સંસ્થાઓ પર 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ લાદવામાં આવશે. અને ત્યારે ધાર્મિક ધર્મ પરિવર્તન કરાવતી સંસ્થાઓની ઇમારતો પણ જપ્ત કરીને તોડી પાડવાની જોગવાઈ છે. ધાર્મિક ધર્મ પરિવર્તન કરાવતી સંસ્થાઓની ઇમારતો પર બુલડોઝર કાર્યવાહી ત્યારે જ કરવામાં આવશે જ્યારે નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોય અથવા તે અતિક્રમણ કરીને બનાવવામાં આવી હોય. બિલની જોગવાઈઓ અનુસાર જો કોઈ પણ જગ્યાએ સામૂહિક ધર્મ પરિવર્તન થાય છે તો તે મિલકત ત્યાં જ તોડી શકાય છે. જે મકાનમાં સામૂહિક ધર્મ પરિવર્તન થયું છે તે મકાનને વહીવટીતંત્ર જપ્ત કરશે. ધર્મ પરિવર્તનના હેતુથી લગ્નને ધાર્મિક પરિવર્તનની વ્યાખ્યામાં સમાવવામાં આવ્યા છે. सामाजिक सद्भाव धर्म की जैसे ही चर्चा हुई, कांग्रेस चर्चा से भाग गई। बहस में उन्होंने भाग नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। उनके राष्ट्रीय नेताओं का उनके पास फोन आया और वो हो हल्ला करने लग गए। वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात् और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करवाई है। हमारा भी सौभाग्य कि ऐसे स्वर्णिम पलों में हमारी भी उपस्थिति छोटी सी रही है और राजस्थान की जनता कई वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि राजस्थान भारत की सीमांत प्रदेशों में है और पाकिस्तान से लगता हुआ है। पिछले कई वर्षों में सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों के कारण संतुलन बिगड़ रहा था। उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सही समय पर कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पुरजोर समर्थन के साथ में ये बिल पारित हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आसपास के सभी प्रदेशों के अंदर पहले से ये बिल पारित हो चुका था, परंतु राजस्थान की जनता प्रतीक्षा कर रही थी। ये बताइए कि जहाँ सबकी आंखें खुली है, सब आवाज सुन सकते हैं, वहाँ कोई कहे कि कैमरे लगा दिए, ये क्या बात हुई? यहाँ पर 20 कैमरे लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो विषय अलग है। मुख्य विषय ये है कि भारत के अनेक राज्यों में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल आए हैं। उनमें राजस्थान का बिल सबको रोशनी दिखाने वाला बिल है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बिल मानक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन श्रीमान भजन लाल जी की सरकार में जो यह बिल आया है यह सबसे मजबूत दिशा दर्शक बिल है और यह बिल उस भावना को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिशत हिंदुओं के बीच में दूसरे कोई भी धर्म को मानने वाला शांति से रह सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के बीच में
50% हिंदुओं का जीना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब इस देश की धरती पर हो रहा है और लव जिहाद जो हो रहा है, अब वो केरल की और बंगाल की बातें नहीं रह गई, आपके अपने राजस्थान में वो आ चुका है। विजयनगर में घटना हो चुकी, अजमेर में घटनाएं हो चुकी, जोधपुर में घटनाएं हो चुकी, जो आप में से कोई एक चैनल को पत्रकार अभी भी कुछ दिन पहले सामने लाए हैं। बधाई देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ये लोग कभी भी जो है, सबसे पहले तो मेरा आरोप है इस सरकार पे कि पहले जो लोग अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे ना, आज वो हम विधायकों की मुखबरी करने के लिए यहाँ सदन के अंदर कैमरा लगा रहे हैं और जानबूझ के कैमरा लगाए गए हैं ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल लेके आए और तब ये कहें कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। आज आपकी दिल्ली में सरकार है, आप देश के अलग अलग राज्यों में कानून बनवा रहे हो, दिल्ली में बनवाओ ना ऐसा मजबूत कानून कि कोई धर्मांतरण हो ही नहीं सके। तो ये किससे कह रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारी समझ से बाहर है। તો હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ તો ગૃહમાં ધર્મ પરિવર્તન પ્રતિબંધ બિલ પસાર થયા પછી અમારા સંવાદદાતા વિષ્ણુ શર્માએ મંત્રી જવાહર સિંહ ભેદમ સાથે ખાસ વાતચીત કરી। જુઓ એક ખાસ અહેવાલ। मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हमारे साथ हैं। सर, आज जो जबरन धर्म परिवर्तन राजस्थान में कराए जाते थे प्रलोभन देकर, उनके खिलाफ जो बिल है वो पास किया गया है। क्या लगता है किस तरह से जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं वो प्रदेश में रुकेंगी? निश्चित रूप से इस कानून के प्रतिपादित होने के बाद, लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। पिछले दिनों से जिस तरह के वाकया हमारे सामने आ रहे थे, ये मिशनरीज लोग या कुछ संस्थाएं लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही थी। हमारे गरीब लोग, हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, महिलाएं उन लोगों के बहकावे में और प्रलोभन में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते थे, जिससे उनके सामने गंभीर समस्याएं, संकट उत्पन्न होता था। उस पर ब्रेक लगेगा और जो इस तरह का अपराध करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कानून के तहत कार्रवाई हो सकेगी। मंत्री जी, लव जिहाद जैसे मामले सामने आते थे, कितना उन पर लगाम लगेगी? ऐसी संस्थाएं जो इस तरह के घटनाक्रम करते थे उन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा? निश्चित रूप से इस कानून में प्रावधान रखा गया है कि जो अवैध संपत्ति अर्जित करके बिल्डिंग बनाएगा उसके खिलाफ तोड़ने का प्रावधान है। कठोर कानून में आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं। भारी भरकम जुर्माना लगाने का इसमें प्रावधान है और इस कानून के तहत हम अपराधियों के खिलाफ, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। मंत्री जी, लास्ट सवाल, कांग्रेस आज इस पूरी चर्चा में शामिल है। कांग्रेस का चेहरा तो बेनकाब हो गया। धर्म की जैसे ही चर्चा हुई, कांग्रेस चर्चा से भाग गई। बहस में उन्होंने भाग नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। उनके राष्ट्रीय नेताओं का उनके पास फोन आया और वो हो हल्ला करने लग गए। वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। धर्म विरोधी लोग हैं। राजस्थान की जनता के सामने उनका चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस के लोग हमेशा धर्म विरोधी लोग रहे हैं और यही उनका चरित्र है। कांग्रेस के लोग हमेशा धर्म विरोधी रहे हैं, ये कहना है मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का। आज राजस्थान की विधानसभा में जो बिल पास हुआ है उससे कहा जा रहा है कि तमाम जो लव जिहाद सहित जो धर्म अवैध रूप से जो धर्म परिवर्तित कराए जाते थे लोभ लालच देकर, उन पर ब्रेक लगेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज। સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યાની તો રામ મંદિરના નિર્માણને લઈને અયોધ્યાથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। જણાવી દઈએ કે આજે ભવન નિર્માણ સમિતિની બેઠકનો બીજો દિવસ હતો। નૃપેન્દ્ર મિશ્રાની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ હતી। તમને જણાવી દઈએ કે આ બેઠકમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રામકથા સંગ્રહાલયના નિર્માણ અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। આંતરરાષ્ટ્રીય રામકથા સંગ્રહાલયના નિર્માણનો અંદાજિત ખર્ચ લગભગ 200 કરોડ રૂપિયા છે। આ બેઠક પછી સીમા દિવાલના નિર્માણ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી અને ગઈકાલે જણાવી દઈએ કે ટ્રસ્ટની નાણાકીય સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી। ट्रस्ट की वित्तीय समिति की, तो वित्तीय समिति में जो भी विषय थे उन्हें पारित किया गया कल, और आज उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। अब मंदिर निर्माण में वहाँ जो वास्तविक खर्चा है उससे कम इसलिए होता है मिलता है क्योंकि जितना बिल पास हुआ है
जो खाते से रुपया निकला है उतना ही वहाँ परिलक्षित होता है। तो करीब 1100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन मेरा स्वयं का अनुमान है कि अब तक के मटेरियल वगैरह को अगर जोड़ लिया जाए, जिसका ऑर्डर हुआ है, सप्लाई हो रहा है, तो करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च भुगतान या तो हो गया है या वो कमिट हो। હવે આગળ આ તરફ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાની તો ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં એક પુરુષ એક મહિલાને પ્રેમ જાળમાં ફસાવીને પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો અને છેતરપિંડી કરીને તેનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવ્યું હતું। જ્યારે પોલીસે મહિલાની શોધ ન કરી ત્યારે પતિએ હાઈકોર્ટનો આશરો લીધો। કોર્ટના આદેશ પર પોલીસ સક્રિય થઈ અને ત્યારબાદ ચેન્નાઈથી મહિલાની શોધ ઓળખ કરવામાં આવી છે અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી રાજા હોવાનો ઢોંગ કરીને અને તેને પ્રેમ કરતો હતો। તેનું સાચું નામ એહસાન છે। પોલીસે રાજા ઉર્ફે એહસાન સહિત 5 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે। પોલીસે જણાવી દઈએ કે આગળની કાર્યવાહી કરી છે, તેની માતાની ધરપકડ કરી છે। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મહિલાના પતિ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી રીટ અરજી બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। थाना फेस की पुलिस टीम के द्वारा 3 लोग गिरफ्तार किया गया, जिसमें मेन मास्टरमाइंड का नाम राजा मियाँ है। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक कूटरचित निकाहनामा बनवाया था और उस कूटरचित निकाहनामा बनवाने में एक पति था और 2 उसके साथ अन्य विटनेसेस थे। इन लोगों ने एक महिला, हिंदू महिला का नाम एक मुस्लिम महिला के नाम में चेंज किया और उसके बाद इसका अवैध धर्मांतरण विधि पूर्वक ना करा के अवैध रूप से करवाया। इस संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और अन्य लोगों के रोल की जांच जारी है। प्रिया शर्मा बनी खुशबू खातून। आपको बता दें कि नोएडा के हाईटेक सिटी में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है कि नोएडा के गढ़ी चौखंडी स्थित रहने वाली, थाना फेस 3 स्थित रहने वाली एक महिला प्रिया शर्मा जो एक निजी कंपनी में राजा मियां के साथ काम करा करती थी, उसे आरोप है कि राजा मियां ने प्रिया शर्मा को प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ जबरन डरा धमका के उसका धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर लिया। ये पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब प्रिया शर्मा की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। हाइबस कॉर्पस की याचिका जब उन्होंने हाईकोर्ट में दायर करी और पुलिस ने प्रिया शर्मा को चेन्नई से बरामद करा। बरामद करते समय पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक कूटरचित दस्तावेजों के ब्याह पे प्रिया शर्मा के साथ निकाह कर उसे खुशबू खातून बना दिया गया। जबरन डरा धमका कर उसे उसका धर्मांतरण कराया गया और उससे निकाह किया गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजा मियां के पिता और उनकी मां को इसमें मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इसमें आगे की जांच कर रही है कि क्या इस मामले से के तार और भी कहीं जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों ने और भी किसी का धर्मांतरण कराया है। अब पुलिस इसमें गहनता से जांच कर रही है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। હવે આ તરફ આગળ આપણે વાત કરીએ તો આઝમગઢ હેડલાઇન્સમાં છે, કારણ પ્રેમ છે। પ્રેમે ભયાનક વળાંક લીધો અને સંબંધોએ લોહીનો રંગ ધારણ કરી લીધો છે। જહાનગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ધનારબંધ ગામમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક યુવાનનું ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી છે। એવું માનવામાં આવે છે કે આ હત્યા પ્રેમ સંબંધને કારણે રચાયેલા ભયાનક કાવતરાનું પરિણામ છે। એકંદરે પ્રેમથી શરૂ થયેલી વાર્તા નફરત અને ગુસ્સામાં ફેરવાઈ અને લોહી સુધી પહોંચી હતી। પ્રેમ, જુસ્સો અને લોહીની આ ભયાનક વાર્તાએ આખા ગામને આતંક અને શોકમાં ડૂબાડી દીધું છે। दिल्ली से लौटा युवक, खून से लथपथ मिला शव। गांव में मातम का माहौल, पिता ने गोद में थामा शव। गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, सिवान की सैर बनी आखिरी यात्रा। प्रेम में धोखे से जन्मी नफरत, नफरत ने छीन ली जय हिंद की जिंदगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र का धनार बांध गांव, जहां बीती रात खून से सनी दास्तां लिखी गई।
24 साल का युवक जयहिंद कुमार राम, जो कुछ ही दिन पहले दिल्ली से रोजगार करके लौटा था, गांव पहुंचने के बाद वह रोज की तरह देर शाम टहलने के लिए सिवान यानी खेत की ओर गया। लेकिन ये टहलना उसकी जिंदगी की आखिरी सैर साबित हुआ। रात का सन्नाटा था। गांव के खेतों के बीच बने पगडंडी रास्ते पर जयहिंद टहल रहा था, लेकिन तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर धावा बोल दिया। धारदार हथियार से हमला किया और उसका गला रेत दिया। जयहिंद वहीं तड़पता रहा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। घटना की भनक जब परिजनों तक पहुंची तो गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर घर वालों को बताया कि उनके बेटे पर हमला हुआ है। परिजन दौड़ते हुए खेत की ओर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देख सबकी चीख निकल गई। खून से लथपथ जयहिंद का शव जमीन पर पड़ा था। पिता ने बेटे का शव गोद में उठा लिया और बेसुध होकर रोने लगा। गांव की औरतें चीखने चिल्लाने लगी और पूरा माहौल मातम में बदल गया। मृतक जयहिंद के घर वालों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग ही वजह है। गांव की ही एक युवती का पहले आशुराम नाम के युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन आपसी विवाद के चलते दोनों की बातचीत बंद हो गई। इस बीच उस लड़की की नजदीकियां जयहिंद कुमार राम से बढ़ गईं। बातचीत और मुलाकातों का यह सिलसिला गांव वालों की नजरों से बच न सका। जयहिंद नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया था, लेकिन गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। युवती के पूर्व प्रेमी आशुराम को यह सब नागवार गुजरा। उसे युवती की बेवफाई ने झकझोर दिया। जुनून और गुस्से से भरे आशुराम ने जयहिंद को रास्ते से हटाने की ठानी। उसने युवती के चचेरे भाई श्रवण कुमार और राजेंद्र के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत तीनों ने जयहिंद को उस समय निशाना बनाया जब वह रात को गांव के सिवान में टहलने निकला था। तीनों ने बेरहमी से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। यह मामला थाना जहानागंज के धनारबाद गांव का है। यहाँ पर एक व्यक्ति जयहिंद कुमार राम, इसकी धारदार हथियार से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गई है। मृतक के पिता द्वारा गांव के ही 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जयहिंद की हत्या के बाद गांव में मातम तो छाया ही, लेकिन साथ ही लोगों के बीच आक्रोश भी पनपने लगा। गांव वालों का कहना है कि एक छोटे से प्रेम विवाद ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। परिजनों ने पुलिस में तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच शुरू की गई। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा। आजमगढ़ की इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों की सच्चाई को सामने ला दिया है, जहां मोहब्बत से शुरू हुआ रिश्ता नफरत और खून तक पहुंच गया। जुनून और बेवफाई के खेल ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। जयहिंद की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि गांव में खौफ भी फैला दिया। अब घर वाले चाहते हैं तो सिर्फ बेटे के कत्ल का इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.